फिजिकल या फिर और भी सोशल भी? एनी आइडिया, एनी एडिशन? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? अगर नेचुरली ना हो, लाइक मोबाइल्स, but still your it's a part of your environment. Any idea, friend? Hello. Environment is anything around us, physical, social, mental, in any way. Good. मैंने थोड़ा बहुत ठीक है जा रहे हैं आप. Anyone else? Good. Biotic, abiotic factors in and around you, if influencing you, means a kind of feedback mechanisms are if there, then you can say it's an environment. Ecology एक word आया. What do you mean by ecology then? And what is difference between environment and ecology? हेलो फ्रेंड, क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है? आर्यन त्यागी। और कौन से क्लास में? मैंने ब्रांच और ईयर? ब्रांच और ईयर? केमिकल एंड फिर। वाह, गुड। नाम और ब्रांच? ओके। हेलो फ्रेंड, आप यहाँ आ जाओ, आप आगे आ जाओ। आप अकेले अकेले यहाँ, आप भी आ जाओ फ्रेंड। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। ब्रांच? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फ्रेंड आपका? मोहन। सो फ्रेंड, अभी आप शुरू करते हैं रियल में क्लासेस। सो अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज पंकज कुमार गुप्ता and I am Ramanujan Fellow in the CRDT, Center for Rural Development and Technology. I am also adjunct assistant professor at University of Waterloo, Canada. My area of expertise is water resource management, including environmental impact assessment and hydrological and developmental project assessment and related works. And basically, pollution पे बहुत ज़्यादा work है. So, in next 7 classes, 6 to 7 classes, depending on the schedule, I am going to interact with all of you on the two major topics: environmental impact assessment and global environmental issues, which are kind of written content of your RDL 725. दो ही मेजर टॉपिक कवर करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर EIA एंड ग्लोबल इश्यूज. अब इनके वेटेज आपको बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है. EIA is a kind of tool assessment methodology which you have to capture in a way so that you can evaluate and the proper impact of any project. So अभी जितना चीज पढ़े उसकी अगर evaluation करना हो तो EIA is a tool, वो एक माध्यम. That's why you have to read understand about EIA. EIA में understanding के साथ साथ कुछ policies हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसे we will try to understand, as well as we will also discuss kind of projects and scenarios so that you can understand the real साइट में अगर कहीं हम जाएं कुछ EIA करने तो एक्चुअली में मेरे साथ क्या सिनेरियोज हो सकते हैं. सो इन 3 classes we will try to understand in introduction we will try to understand the basic structure of EIA. In methodology we will try to understand the way to describe, compute and analyze the EIA process. And in 3rd class we will try to discuss the actual scenarios. Okay. In global environmental issues, there are multiple issues you can see in and around: climate change, ozone depletion, sea level rise, pollution, health. Lot of issues are there at a global scale. But we will try to cover each in a brief way, and we will try to again accelerate discussion. तो क्लास जो होगी वो नोटबुक बेस्ड नहीं होगी, टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी. अगर आप क्लास में अंडरस्टैंड कर पाएंगे देन ओनली यू कैन राइट. जो मेरा पर्सनली, चूँकि मैं
पिछले ये 4th सेमेस्टर जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, सो मेरा ये बेसिक ये रहा है कि जिन्होंने क्लास में समझा है उन्होंने 70-90% स्कोर किया है, जिन्होंने क्लास में नहीं समझा है उनका एकदम ही स्कोर नहीं हो पाया क्योंकि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। सो क्वेश्चन विल बी इन योर एग्जामिनेशन एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, योर व्यू, कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर आप अपने व्यू को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर इस क्लास का कोई महत्व नहीं। ओके, ये मैंने डेटा गैदर नहीं करना है, डेटा इज ऑलरेडी देयर इन इंटरनेट। आप ये करेंगे चैट जीपीटी में तो शायद इतना आपको पीपीटी भी बन के आ जाएगा। ओके, एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू डेवलप अ व्यू बेस्ड ऑन द क्लास कंटेंट। ओके, तो अपने डेवलप करना है उस व्यू को। So how many of you are good in English or Hindi both? Or absolute English? जिनको ये absolute English content चाहिए क्लास में, कोई नहीं है, ठीक है। So I will try to make it both. Okay. So friend, you can see the basic. We have started discussion with environment, ecology, growth, development, and economics, which is the core term, key words of your content, your class structure. So now you can see an environment is everything that is around us. Maybe your mobile phone, maybe this classroom, maybe IIT, depend on scale. जिस स्केल पे आप बात करेंगे उस स्केल पे, अगर पर्सनल स्केल पे बात करें तो पर्सनल लेवल की जो भी चीजें हैं वो सब कुछ हम कहेंगे वो मेरा अपना पर्सनल इन्वायरमेंट में कंसीडर करता है। अगर इस कैंपस लेवल में बात करेंगे देन कैंपस विल बी ए इन्वायरमेंट फॉर यू। कहते हैं ना आईआईटी में जाएंगे पढ़ने क्योंकि आईआईटी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट इफ यू सी इन एंड अराउंड इन सोसाइटी। So means at a scale you have a good quality and a good environment. Likewise you can see in and around we have like living things and non-living things, biotic things and abiotic things like sunlight, water, air. You can see the kind of abiotic things. Biotic things like butterfly, birds, snakes, biodiversity, likewise plants. Okay. All if you see in and around such a kind of nurturing environment, nurturing complex system, then you can refer it as an environment. But ecology is a study of environment. You have to identify. Here human is also a part of environment. But here absolute natural things, if you are reading, if you are understanding, then you can say it's an ecology. Ecology is a study of natural mechanisms, natural conditions, or you can say the ecosystem, maybe the plant, maybe the microbes, maybe the soil, maybe the other component of environment. But यहाँ ecology में जो है वो human का context जो है वो कम हुआ है। Here you can say human and all other physical states, or even the non-living states. Okay. जैसे मोबाइल फोन भी कह सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट, डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल कंटेक्स्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। बट हियर इकोलॉजी में ये नहीं। ग्रोथ मींस समथिंग व्हिच इज एडिंग क्यूमुलेटिंग ओके इन योर हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जैसे आज आईआईटी में दो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, अगले साल 4 हो जाए, तो आप जब विजिट करने आओगे कभी तो कहोगे बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। मीन्स समथिंग इज ग्रोइंग, accumulating. Development is a kind of a process by which you are facilitating service to the society. कोई भी सोसाइटी को सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एंड इकोनॉमिक्स यू नो बेटर देन मी, इट्स all about the money and the okay. So now you can see we have two pictures here. Okay, and let me ask you one question. एक पिक्चर में आप देख सकते हो, you can visualize the very good natural environment where in a hill there is a river or dam, something like that. Water is bounded, and you can see it's a forest. Everything is fine. But in the same picture you can see
some developmental things, buildings and ongoing activities are over there. Plants are also there, water reservoirs, everything are there. Let me ask you one question. So in first picture one can say it's a good for environment because everything is kind of balanced view, है ना? है कि ना? कितने लोग सहमत होंगे? आपका क्या नाम है? ओके, ब्रांच है। आप बताएं दोनों पिक्चर में आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लग रहा है? फर्स्ट, गुड। क्यों? एवरीथिंग इज ग्रीन, नेचुरली दिख रहा है, वाटर रिसोर्सेज आर देयर, हिल एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट। सेकंड वाले में क्यों नहीं अच्छा लग रहा है फ्रेंड? यानी पहले आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाला। फर्स्ट। सेकंड क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है। हाँ, कुछ ऐसा हुआ जिसने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है एंड देन अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है इन द सेम प्लेस। बट यू कैन सी ये एक पावर कॉर्पोरेशन का है जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन बन रहा है। ओके, अब यू कैन नाउ सी द टू पर्सपेक्टिव। वन, पीपल लाइक एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड नेचुरल थिंग्स, उनको ये पिक्चर अच्छा लग रहा है। एंड जिनको थोड़ा बहुत भी सोसाइटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, डिमांड को पूरे करने की चिंता होगी क्योंकि वी हैव इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कहेंगे नहीं ये पिक्चर जस्टिफाइड है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू डेवलप काइंड ऑफ अ सिस्टम, काइंड ऑफ अ सेटअप सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। अब दोनों लोगों को अच्छा लग रहा है ना? So one group has also a kind of description, justification, another group has also description. So impact you can see, इसकी डेवलपमेंट में क्या हुआ कि पूरी नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो गई, so it's created impact. But impact होने के बावजूद the descriptions and the views are different. अगर आप जाएंगे THDC जो टेहरी डैम हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये टेहरी डैम का फोटो है, कोटेश्वर डैम का फोटो है। अगर उनके पास जाएंगे बोलेंगे आपने वो पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे डिमांड तो आपका है कि फॉर एसी, फॉर मोबाइल चार्जिंग, फॉर हाउस होल्ड, फॉर इंडस्ट्री, यू आर रिक्वेस्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अस। एंड फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में आपने डिस्टर्बेंस ला दिया। सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस क्लास डिस्कशन कि हम बैलेंस करके एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट को कैसे आगे वे फॉरवर्ड अपने ओवरऑल इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को, सर्विसेज को कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वन कैन सी द पॉजिटिव साइड क्या है। हम इकोलॉजी को देख रहे हैं तो निगेटिव साइड दिख रहा है कि हमारा डिस्टर्बेंस हुआ है। यदि आप इसे पॉजिटिव लेंगे तो आपको वहां निगेटिव दिखेगा क्योंकि आपका वाटर रिसोर्स फ्लो हो रहा है बट यू कैन नॉट हार्वेस्ट एनर्जी। पानी बह रही है लेकिन आप उसे हार्वेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके व्यू पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, if you are thinking, if you are describing impact, तो क्या महत्वपूर्ण है कि आप किस व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं। अगर बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो इस पिक्चर को जस्टिफाई करेंगे तो उनका जो पूरा जस्टिफिकेशन होगा वो इकोलॉजी के तरफ होगा, नेचर के तरफ होगा। जो उस पिक्चर को जस्टिफाई करेंगे उनका पूरा डेवलपमेंट के तरफ होगा, आपके डिमांड्स को लिस्ट करने के तरफ होगा। और जो दोनों को बैलेंस करके अपना व्यू देंगे वो इस क्लास के स्कॉलर्स होंगे जो बताएंगे कि क्यों दोनों जरूरत है और दोनों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं टुगेदर। ओके, सो फ्रेंड आप बताएंगे कि पूरे विश्व में एट ग्लोबल स्केल ये पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इतनी चिंताएं कब से शुरू हुई? क्योंकि अगर आप इफ यू सी द ग्लोबल
अगर पूरे विश्व की हिस्ट्री देखेंगे तो 14th सेंचुरी तक तो डार्क एरा था। फिर यूरोप में क्या हुआ है कि पहली बार इनलाइटमेंट हुई, यूरोप में कल्चर्स एंड देन द मैथमेटिक्स और सारी चीज़ें आना शुरू हो गया, जिसमें आर्ट भी थे। फिर 17th सेंचुरी को देखेंगे तो आप सी को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बहुत सारे इंटरनेशनल रूट्स डेवलप हुए। 18th सेंचुरी आते आते हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चले गए। पूरा इंग्लैंड यूरोप आप देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चपेट में आ गया। धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गया, बाजार डेवलपमेंट शुरू हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय तक भी आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट की कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती थी फ्रेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। उनको इतना नहीं, उनको कोयले को जला करके इंजन चलती थी, जो ट्रेन थी उस समय कोयले जल के चलती थी। फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग इसलिए करते थे क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड हो सके। ये स्टोरी था। आप में से बताएंगे कोई कि कब से ऐसा शुरू हुआ कि पूरे विश्व में ऐसा लगा कि नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट इन्वायरमेंट, अदरवाइज वंस अपॉन ए टाइम वी हैव टू जस्टिफाई द इम्प्लीकेशंस। कब से ऐसा हुआ? हाँ, ये भी मैंने एक बहुत लेट स्टोरी है। ओजोन भी बहुत लेट स्टोरी है, तो 1980 के दशक में हुआ, 1980s में। अच्छा, पहली बार विश्व अर्थ समिट कब हुआ? एनी आइडिया? पहली बार ग्लोबल स्केल के सारे लीडर एक साथ बैठ के कब उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया? इट वाज स्टॉकहोम। कहाँ है? द सिटी इन यूरोप। वहां पे एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 5 जून से 16 जून को कंडक्ट हुआ था, 1972। अब आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का वर्ल्ड, किसी को कोई इन्वायरमेंट की चिंता नहीं थी, ठीक है? कोई कॉन्फ्रेंस, कोई लॉजिकल डिस्कशन, कुछ भी नहीं हुआ। 1970s 1945 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले का आप स्टोरी देखें, वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन इंटायर वर्ल्ड वाज एंटरिंग इनटू द कोल्ड वॉर। उस समय भी इन्वायरमेंट की कोई ज्यादा फिक्र नहीं। उस समय तो न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ चली थी कि कौन कितना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, और उनकी टेस्टिंग करते थे। टेस्टिंग कभी डेजर्ट्स में, कभी सीज में, कभी ओपन स्काई में, ये हो रहा था स्टोरी। नाउ सी, in 1972 only the whole world was collectively conducted this United Nations Conference on Human Development. Honorable Prime Minister at that time, Indira Gandhi, was the participatory from India, because head of the state ही इस तरह के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस में पहली बार एक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट किया गया। यू कैन सी इन द स्क्रीन प्रिंसिपल 2, द नेचुरल रिसोर्स ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फौना, स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। अब जैसे नेचुरल इकोसिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होते हैं? जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, इसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं सो दैट कि हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बचा है। आप देखेंगे नेचुरल जो भी नेशनल पार्क में जाएंगे तो कोर जोन में यू आर नॉट अलाउड टू विजिट, बिकॉज कि उसे हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर रखना चाहते हैं। और इसको एक प्रिंसिपल के तहत एडॉप्ट किया गया ग्लोबली, है ना। अब इसमें आप देखेंगे 1972 में ये हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज द पार्टिसिपेटरी फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया का अगर उस समय का लेटर देखेंगे तो इंटायर फोकस वाज बेस्ड ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया। सो उन्होंने ये फोकस किया कि भारत में जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, पर्यावरण की बातचीत करना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ हद तक उस समय के समय को देखेंगे तो ये इट वाज एक्सेप्टेबल। ओके, इंडिया ने अपनी पहली इन्वायरमेंटल लॉ इसी साल में इंदिरा गांधी जी के यहाँ से वापस आने के तुरंत बाद एडॉप्ट किया। कौन सा लॉ था आप बताएंगे? द फर्स्ट इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ 1974 में एडॉप्ट किया गया था। 72 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूएस ने पहला एजेंसी बनाई ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और उन्होंने पहली बार लाया क्लीन एक्ट, क्लीन एयर वाटर एक्ट यूएस में। उसी समय भारत ने भी एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो एक्ट था वाटर क्वालिटी पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974। सो नाउ यू कैन सी द स्टोरी। 72 में इंडिया पार्टिसिपेट करती है इस कॉन्फ्रेंस में, एंड देन इंडिया इज ऑल्सो इन द वे कि हाँ, हमें इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए वी हैव टू फिगर आउट समथिंग एट अ पॉलिसी लेवल। एंड इन 74 इंडिया पहली बार एक एक्ट लेके आती है, एयर वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। ओके, बट हुई क्या, जो 1972 में इंडिया का इकोनॉमी जो था क्लोज इकोनॉमी। अब 1972 के इंडिया में जाए, आप जैसे कितने लोग हिस्ट्री में आनंद रखते हैं? कोई आइडिया है मैं जो बोल रहा हूँ? 1972 का इंडिया कैसा था सोचिए। कोई भी हम क्या लिबरलाइजेशन के तरफ गए थे? कब गए लिबरलाइजेशन की तरफ? 1991 में, करेक्ट, जब हमने ग्लोबल मार्केट में अपना मार्केट को ओपन किया। ओके, लेकिन 1972 में इंडिया वो हालात में नहीं था कि इंडस्ट्री इतना इम्पैक्ट करे, या आप इंडस्ट्री को इतना प्रेशर कर दें इन्वायरमेंट के नाम पे कि वो फरार हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं। आप देखें मोस्ट ऑफ IITs की जो स्थापना हुई थी, द एस्टेब्लिशमेंट, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज to accelerate the industrial revolution, industrial development in India. Okay, so 1972 में इंडिया का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रेयरली तो नहीं कहेंगे, प्रोडक्शन जो इस लेवल की थी जहाँ पे आप इंडस्ट्री पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि आप इन्वायरमेंट को क्षति मत पहुँचाइए। अगर उन्होंने वेस्ट जनरेट किया है, अरे उन्हें ओपन डंप बनाना है, उन्हें वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने हैं, तो उसके बेस पे आप उनके प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब मान लीजिए आप सब 1972 के इंडिया में, आपको एक टी शर्ट चाहिए, है ना? आपने बोला सारा डाई इंडस्ट्री बंद कीजिए, बिकॉज डाई इंडस्ट्रीज आर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। दूसरे दिन क्या होगा? मार्केट में हंगामा हो जाएगा, और डाई इंडस्ट्री बाय प्रेशर, पब्लिक प्रेशर भी चलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट इस चीज को इग्नोर करती थी। तो 1972 से 1986 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा प्रेशर बनाने का कभी कुछ मौका नहीं मिला, एंड इंक्लूडिंग इमरजेंसी। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी चेंजेस हुई उस समय। पहली बार कांग्रेस से जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, और फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। 1984 में इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया। तो इस समय गवर्नमेंट भी बहुत ही अनस्टेबल रही। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी कि कोई पॉलिसी लेके उस लेवल से आए। 1986 में 85 में इंडिया कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन में इंटर किया, और 1986 में पहली बार इंडिया में अम्ब्रेला एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो आज तक वैलिड है। अभी भी मोस्ट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल एक्ट इज अंडर दिस अम्ब्रेला एक्ट ऑफ EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, अब ये स्टोरी समझ गए? अब किसी ने पूछा आपसे कि 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा डंप जनरेट कर दिया, उस समय गवर्नमेंट ने क्यों कुछ नहीं किया? तो नाउ यू कैन जस्टिफाई, लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन यू कैन प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे,
इनकी डिमांड इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा थी। अगर डिमांड को रोक दिया जाए, उनके प्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो पब्लिक प्रेशर हो जाता है। getting on like that. So 1986 we have the Environmental Protection Act, और इस एक्ट में इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया कि नो वन कैन पोल्यूट इन्वायरमेंट विदाउट एनी माने लीगल परमिशन एंड परमिट। आपको जैसे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करना है तो यू हैव टू फर्स्ट आस्क गवर्नमेंट, हम इतना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने वाले, तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि नहीं पहले आप ट्रीटमेंट कीजिए देन यू हैव टू डिस्चार्ज। मींस व्हाटएवर द प्रोडक्शन इम्प्लीकेशन वाज देयर मस्ट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो इसी एक्ट में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अदर रेगुलेटरी एजेंसीज का जन्म हुआ एंड दीज बॉडीज वर फॉर्मुलेटेड इन इंडिया एंड नाउ इज एक्टिंग वेरी वेल। ओके, 1986 के बाद फिर गवर्नमेंट को लगा 1984 में कि वी हैव टू come up with a policy where every developmental project has to go through a process। एक प्रोसेस से उन्हें गुजरना होगा जिसमें हम उनके इम्पैक्ट को एसेस करेंगे। देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, नॉट एक्ट, नॉट रूल, नोटिफिकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1994। 94 में पहली बार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया। और क्यों लाया गया? क्योंकि रूल बोलती थी 1986 का कि कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, कोई अगर करेगा तो इतना जुर्माना हो जाएगा, बट कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं थे कि मान लो आपको इंडस्ट्री खोलना है, ओके, सो आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि आपको पकड़े जाके कि आप पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं। कोई मान लीजिए केरला में बैठा है, कोई आसाम में बैठा है, कोई बिहार में है, कोई जम्मू में है, वो सारी इंडस्ट्री हैं, फॉरेस्ट में इंडस्ट्री हैं, अब उनको कैसे गवर्नमेंट असिस्ट करे? गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी। सो देन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड EIA notification 1984 which was like again amendment in 2006 में शुरू हुआ। अब यहां से शुरू होती है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का सिलसिला। ओके, सो बेसिकली फ्रेंड, अगर मैं आपको बोलूं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, मैंने अभी एक वर्ड बोला, गवर्नमेंट को लगा कि किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रेगुलेट करने के लिए EIA प्रोसेस से उनको गुजरना हो। वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का मतलब आप में से क्या समझते हैं? मे बी हेलो, आप सो रही हैं, आप बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट? आप तब तक आप लोग सोचिए, सभी लोगों से पूछेंगे एक एक एग्जाम्पल, जोर से और जल्दी एग्जाम्पल देना है। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए। इंडस्ट्री तो बिग टर्म हो गया, काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म हो गया, कुछ ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल देकर के फॉरवर्ड करते हैं। सपोज कोई डंप है तो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, you can add what do you mean by developmental project? फ्रेंड, आप लोग बताते चलिए आप वन बाय वन। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बिग नाम बोलिए ना, जैसे एयरपोर्ट। अभी देख रहे हैं कितनी गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे आने के बाद इतने एयरपोर्ट खुल गए इस देश में। हाइड्रो पावर स्टेशन, डैम जिसे बोलते हैं, है ना फ्रेंड? एनीथिंग एल्स? सीमेंट इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग, रोडवेज। नितिन गडकरी जी का सुन लीजिए यूट्यूब पे, कहेंगे हर गांव में हम नेशनल हाईवे लेके जाने वाले हैं। Educational institutes like IITs, yeah. Anything, yes. Hospitals, yes. और कुछ बताइए। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, इंटरनेट सर्वर स्टेशन। अभी देखिए ग्लोबल सी के केस में इंटरनेट के स्टोरेज स्टेशन कितना बड़ा इश्यूज बन के आ रही है। Anyone else?
स्कूल्स, ठीक है। एटॉमिक बम। हाँ, of course, any process, procedures. So you can see there is a kind of activity, process, infrastructure which you have to develop to provide kind of service, social service. अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होगा? थर्मल पावर प्लांट से होगा, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से होगा, सोलर पावर प्लांट से होगा। ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। रोडवेज अच्छे चाहिए क्योंकि यू हैव टू प्रोवाइड दी सर्विस टू सोसाइटी। अच्छी रोडवेज चाहिए, अच्छे नेशनल हाईवेज चाहिए, एक्सप्रेसवेज चाहिए। अब वाटर रूट चाहिए। अभी वाराणसी से कलकत्ता जाने के लिए अगर किसी सामान को भेजना है तो वाटर रूट्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर देयर। ओके, अब फूड ग्रेन को सब्जी मंडी तक पहुंचाने हैं, रूरल रोड्स शुरू हो रहे हैं। अब बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, सिनेमा हॉल्स चाहिए, पार्किंग स्लॉट्स चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, पोर्ट एयरपोर्ट्स चाहिए। आप देखिए एयरपोर्ट्स का ही ले लीजिए बेस्ट एग्जांपल। नाउअडेज कितने कौन शहर से आप लोग आते हैं? आप किस शहर से आती हैं? विजयवाड़ा। कहाँ है आपके आसपास कोई सा एयरपोर्ट है सबसे अच्छा? एयरपोर्ट गन्नवरम है ना? हैदराबाद से कितना दूर? नियरेस्ट बिग इज हैदराबाद। Hyderabad, but you have a separate airport nearby your home. You can see now. I am from Bihar, and one recently we have पहले पटना में थी, अब दरभंगा में हो गई एयरपोर्ट। Now you can see कोई भी एग्जांपल है। आप कहाँ से हैं? भोपाल में तो ऑलरेडी एयरपोर्ट थी पहले, पर बट यू कैन सी इन एंड अराउंड 2-4 नए एयरपोर्ट डेवलप हुए होंगे। गोरखपुर आपके पास है ही, गोरखपुर में अभी रिसेंटली हुई है। एनीवन रेलवे स्टेशन की नई रीडेवलपमेंट हो रही है। सो फ्रेंड, बेसिक कहना यहाँ पे ये है कि कोई प्रोसेस हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो गवर्नमेंट डेवलप कर रही हो या कोई प्राइवेट एजेंसी डेवलप कर रही हो, कोई इंडिविजुअल डेवलप कर रहा हो, ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी मस्ट बी अप्रूव्ड और मस्ट बी like process this EIA, environmental impact. They have to perform the EIA. Okay. Now you have to understand what is EIA. So EIA is a kind of a process to grant license. It is a basic और बहुत ही मैंने advocate type वाला answer है. It's a kind of the statement. Okay. So EIA क्या है? EIA is just a process to grant a license. For example, if you want to establish your mall, so you have to first apply for license, and then only if you perform the EIA, then only you will get the license approval. किसी को mining करना है, इनको mining करना है, so then what you have to do? You have to perform the EIA. If government will allow you to do the mining, then only you have to perform this activity, mining activity, है ना? कोई भी activity. But if you see the EIA in a broader perspective, EIA actually is the environment. EIA links the environment with development for environmental safety and sustainable development. We will try to understand. कैसे? For example, you can see here, EIA also provide a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse impact. Okay, and then EIA enables you to make a decision for an effective environmental development, and then EIA encourages for adaptation of mitigation strategies in the developmental plan. So basically आप इसको देखेंगे, so EIA is a kind of permit for those जो ये सोच के अप्लाई करते हैं कि बस मुझे किसी तरह लाइसेंस मिल जाए so that I can have a development. But in the process, in the whole process, वो प्रोसेस इस तरह से डिजाइन है, उनको परमिट तभी मिलेगी जब वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, और उन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में व्हाट प्लान डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड देन द पॉलिसी, ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट विल बी कवर्ड. अब वो कैसे कवर होगा, अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. Now you can see here a mining project, right? Okay, so a project without EIA. So environment and then the present status and the project initiative.
without EIA. Okay. The impact was initiated and due to implication lot of impact was there. So ये ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर मूव करती है. ओके. सो एक इम्पैक्ट की डायग्राम पर. अब इसका एग्जांपल लेते हैं माइनिंग. अब इनको माइनिंग करना है, बिलवारा है, जिंक की माइनिंग करना. इनको EIA की कोई जरूरत नहीं. इन्होंने एकदम पूरी जेसीबी लगा दी, उस इलाके की हर एक जेसीबी को लगा दिया, हर एक लेबर को लगा दिया, हर एक इक्विपमेंट लगा दिया, खूब माइनिंग किए जा रहे हैं. क्योंकि रेगुलेशन नहीं, इनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है. So what he has done? He has implemented all the possible way to extract the mineral. Remember? तो क्या हो गया? At the end of the day, कि इतनी सारी environmental impact generate हो गया. Ground water disturb हो गया, आसपास की air disturb हो गई, biodiversity वहाँ का disturb हो गया. जितने वहाँ पे हाथी, भालू, शेर थे सब भाग गए. गांव वाले भी बोले अब ये इलाका रहने लायक नहीं है, वो भी माइग्रेट हो गए. लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस वहाँ जनरेट. बट अब मान लीजिए कि दूसरा एक फ्रेंड है, इनका एक EIA का प्रोजेक्ट था सीमेंट इंडस्ट्री का. इन्होंने प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया और उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कारण EIA में जो रिकमेंडेशंस दिए गए, जैसे एयर पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को कैसे रिस्टोर किया जाएगा, वाटर को कैसे डिस्चार्ज करना है, इन सारे पैरामीटर को इन्होंने मीट किया. तो इनका इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट हुआ, बट रिलेटिवली वेरी स्मॉल, कम. ओके. सो दिस इज काइंड ऑफ गुड एग्जांपल. आप देख सकते हो, ये एग्जांपल देख सकते हो. ये मेरा कैनेडियन रिस्टोरेशन साइट है अल्बर्टा में. So you can see in Alberta what we are doing, we are extracting iron from subsurface. वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा नहीं 1-2 फीट में ही आयल मिल जाता है. तो उस बस आयल मिलने का मतलब वो क्रूड आयल होता है. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो पूरा लैंडस्केप डिस्टर्ब हो जाएगा. सो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ लाइक EIA, जैसा हमारा लॉ है. So we have to restore the same landscape so that all the environmental services can be facilitated. Okay. तो आप देख सकते हो कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, साथ साथ में इस एरिया को रिस्टोर भी कर रहे हैं. तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने से इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो गया. सो ये फायदा EIA. So जब when we talk about the impact, environmental impact or assessment, 3 वर्ड अब इस पे समझते हैं. environment आप सब समझ गए, impact समझ गए. what do you mean by assessment? Analyzing. Yes, analyzing. Good. That's synonyms. Yes, friend. You are examining the status of any condition. Kind of study. हाँ, kind of condition. आप एग्जामिन कर रहे हैं, you are examining a status of any condition. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि हम टीचिंग मोड में, हम बाहर चले गए, कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप असेसमेंट करके कहेंगे कि ये इसमें इंटरटेनमेंट के मोड में है. तो ये आप उस स्टेटस को एग्जामिन कर रहे हैं. तो असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर्स यू हैव टू परफॉर्म टू एग्जामिन द कंडीशन, स्टेटस क्या है उसका. जब हम इन्वायरमेंट की असेसमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट इज अम्ब्रेला टर्म. सो उनके कई कंपोनेंट हैं, एयर है, वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, एंड देन यू कैन सी द लैंड इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एंड लॉट ऑफ इन्वायरमेंट यू कैन ऐड. Nowadays people are talking about the digital impact on the child. बच्चों पे क्या असर हो रहा है, ओल्ड एज ग्रुप में न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो यू कैन उसको आप जितना चाहें उतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन इफ यू सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इवन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो EIA में किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में आप किस किस कंपोनेंट को चाहेंगे स्टडी करना. Pollution, good. Pollution of air, water, good. Soil, good. Kind of environment है, उसकी condition क्या है, उसकी quality को. हाँ, friend.
एयर का ऑफ कोर्स, गुड। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक रोडवेज कंस्ट्रक्शन होने वाली है ना। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि रोडवेज बनेगी दिल्ली से मेरठ के लिए, बन गई है तो मेरठ से मान लीजिए आए। बोला उन्होंने कि दिल्ली की जितनी वेस्ट मटेरियल हम उस रोडवेज में डालेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर द रोड। तो वेस्ट मटेरियल भी खत्म हो जाएगा और रोड भी बन जाएगा। अब आप बताएं कि क्या क्या आप परफॉर्म करेंगे असेसमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट को कवर करेंगे। कितना खर्चा आएगा? गुड, द एक्सपेंसेस, गुड। पूरा एनवायरनमेंट पे क्या ये तो आपने बहुत मोटे टर्म में बता दिया, स्पेसिफिक बताइए, जैसे इन्होंने कॉस्ट से रिलेटेड बात की। एक हाईवे बननी है, उसमें सारे दिल्ली के वेस्ट मटेरियल यूटिलाइज हो जाएंगे। आप कौन कौन से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को आप स्टडी करेंगे? वहाँ के कितना फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, वेरी गुड। कि रोडवेज बनेंगी तो क्या कोई फ्लोरा फौना पे तो इम्पैक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। यस, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो क्या पॉल्यूटिंग सेल्फ तो नहीं है, गुड। बायोडाइवर्सिटी, हाँ वो उन्होंने बताया, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट कि कहीं कोई ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट को तो नहीं डिस्टर्ब करेगा जिसका कहीं सोशल इम्पैक्ट हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को अपने घर से बहुत मोहब्बत है, अब उसने क्या बोला कि आप कुछ भी हो जाए हम तो घर नहीं देंगे। तो आपने कई पिक्चर्स देखे होंगे सोशल मीडिया में कि पूरी रोडवेज में बस एक घर वो बचा हुआ है, ऐसा देखा है कभी? जापान में, है ना? जापान एयरपोर्ट। हाँ, तो वो ऐसे लोगों में क्या होती है कि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। भारत में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। EIA में ही एक पार्ट है पब्लिक हेयरिंग, जिसमें हम पब्लिक को सुनते हैं, पब्लिक का क्या व्यू है उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। दूसरे क्लास में वो समझेंगे, बट स्टिल द ह्यूमन सेटलमेंट पे अगर कोई इम्पैक्ट है तो हम उसे जरूर स्टडी करेंगे। हाँ, नॉइज ऑफ कोर्स, वो एक्सप्रेस वे गुजरेगी, कोई हॉस्पिटल होगा आसपास में, अगर बहुत नॉइज होगा तो इट्स कैन बी इम्प्लीकेशन। नॉइज बहुत अच्छा फ्रेंड। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो एक सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या आप स्टडी करेंगे? कुछ भी एक्सीडेंट, बायोडाइवर्सिटी, कहीं कोई टाइगर है, अब बहुत सारा केस देखे एलिफेंट का, बहुत सारी NGO चलती है जो एलिफेंट रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो जाता है। सांप का तो बहुत सारे केस आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक्सीडेंट कैन बी एग्जामिन्ड नाउ। टाइम, हाँ ठीक है, टाइम विल ऑल्सो क्रिएट इम्पैक्ट, गुड। Okay, so the quality and the properties of materials which can be used in front. Quality of road, good. Soil. Quality of road जब implement हो जाएगा तब आप देखेंगे। प्री इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या देखेंगे? आपने क्या बताया? Soil of course, क्योंकि रोड का बेसमेंट बनेगा, फाउंडेशन बनेंगे तब। हाँ हाँ, एब्सोल्यूट। जैसे आई वॉज फॉर्चुनेट टू विजिट दिस एयरपोर्ट इन अंडमान निकोबार एंड नेवल एयरपोर्ट, एयरफोर्स नेवल एंड द सिविल एयरपोर्ट इन अंडमान निकोबार, एंड द प्रॉब्लम वाज लाइक एवरी हाई टाइड से उधर पानी इतनी आ जाती थी उनके रनवे पे, वो ट्रेन नहीं होता था और मोस्ट ऑफ द फ्लाइट डिले होते थे उनके। तो ऐसे केसेस जैसे रोडवेज में बहुत फ्लड आ जाए या वाटर लॉगिंग की इशू हो जाए तो कैन बी ए बिग इशू। सो गुड। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्स, सही है। रोडवेज का इम्पैक्ट कैन बी ऑन द वाटर रिसोर्स, रिवर डिस्टर्ब हो सकता है, पॉन्ड सूख सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, गुड। लाइक आसपास
आजकल घरों में कितना डस्ट होता है। हाँ गुड, एयर क्वालिटी से रिलेटेड। कि जो भी वो यूज कर रहे हैं ना, मतलब पॉइजनस है कि नहीं, मतलब Hazardousness you want to study, yes, good. Friend, next. सर जो लोकेशन और रूरल है अर्बन है उसे- Good. And then human settlement, human geography you want to study, good. सर नॉइज पोल्यूशन, Noise, हाँ बताया था. ड्रेनेज सिस्टम, Drainage system, so that water can drain and this can be used for एग्रीकल्चर, agriculture. Absolutely, आप सभी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. So now you can see मोटे मोटे तौर पे what you have to understand the air quality, pollution and the overall impact of the developmental project on the air. अब कुछ प्रोजेक्ट मैं बोलता हूँ जिसमें एयर सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रोडवेज, थर्मल पावर प्लांट, लाइकवाइज. ओके, कुछ इंडस्ट्री होंगे जहाँ नॉइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. फॉर एग्जांपल हाईवेज, टोल टैक्स, आप पार्किंग एरिया, ऐसा नहीं कि किसी के घर के सामने पार्किंग एरिया बना दिया, अब 2000 व्हीकल्स मल्टी लेयर पार्किंग में आएंगे जाएंगे और बगल वाले परेशान, है ना. सो नॉइज, वाटर इन्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे माइनिंग के केसेस हैं जिसमें वाटर पोल्यूशन इज अ बिग इशू. देन यू कैन सी द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, वेस्ट वाटर जनरेटिंग, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पोल्यूशन इतना करते हैं कि वाटर की बिग इशू है. देन द फ्लोरा एंड फौना, मोस्ट ऑफ केसेस में फ्लोरा एंड फौना इज इशू. रेलवेज के प्रोजेक्ट देखें, मोस्ट ऑफ द रेलवेज प्रोजेक्ट आप देखेंगे कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि ये नेशनल हाईवे से नेशनल पार्क से गुजर रही है. देन पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, ओ हमारे बाघ हरिण कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर्स और ये सब बनते हैं. बट बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर. फ्लोरा फौना और इन द इम्पैक्ट जोन एंड द पोटेंशियल डैमेज, एंड देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस you have to also define. And then the land environment, you have to characterize कि ये प्रोजेक्ट कहाँ होने वाली है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, ये सारी चीजें you have to characterize. So now you can see, friend, the legal basis of environment. So EIA is a tool, environmental tool for development. अब अभी इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर EIA को परफॉर्म करेंगे तो इन्वायरमेंट को फायदा ही फायदा होगा, बिकॉज इम्प्लीकेशन को कम करने का एक तरीका है. सेकेंड, यू कैन सी दिस साइंटिफिक रेमेडियल मेजर्स. फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का अगर कोई केस हो तो ग्रीन कॉरिडोर कैन बी इम्प्लीमेंटेड. आप देखेंगे बहुत सारे हाईवे में, हाईवे नीचे से गुजर रही होती है, ऊपर से एक फ्लाईओवर होता है जो टोटली इनके बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया जाता है ताकि ये सारे पशु पक्षी जो है उसको उस रास्ते से गुजरे, क्रॉस करें. लाइकवाइज रेलवेज का अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर नेशनल हाईवे के कोर जोन से गुजर रहा है तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा या उसके लिए कई मेजर्स लिए जाते हैं. तो साइंटिफिक रेमेडियल मेजर्स EIA कैन प्रोवाइड. देन पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ये हम अगले दिन कवर करेंगे. पब्लिक इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक कैसे इसमें इन्वॉल्व होती है. अब नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस. क्या क्या प्रोसेस है EIA का. ये सब अभी तक जो बातें थी दैट इज कॉन्सेप्ट है क्या EIA का. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज तो EIA के कॉन्सेप्ट समझ के आप क्या करेंगे, कहेंगे हमें अप्रूवल चाहिए. सो मान लेते हैं कि ये पूरे ग्रुप इंडस्ट्रियलिस्ट है और आप सब गवर्नमेंट है ना. अब एक परफॉर्म करते हैं EIA. इन्होंने एक प्रपोजल लाया. कौन सा इंडस्ट्री का प्रपोजल लाया बताइए, कोई भी इंडस्ट्री का प्रपोजल. सॉरी, हाँ, स्मार्टफोन डेवलपमेंट करने का एक फैक्ट्री लगाना है नोएडा में. ओके, सो अब इन सारे प्रोसेस को ये परफॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट स्टेज इज ए स्क्रीनिंग. ओके, सो स्क्रीनिंग में क्या होगा, इन सभी का एक ज्वाइंट प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट एजेंसी. गवर्नमेंट एजेंसीज भी दो तरह के हैं, इसको आप नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं फिर इसमें बैक आते हैं. Okay, so there are two categories of the projects of EIA. One is the A and one is the B. A कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होंगे, भारत सरकार के द्वारा
भारत सरकार की जो एजेंसी है उसे बोलते हैं MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF CCR हो गया ये, ओके। सो एक कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे, उसमें डिसीजन लेने की जो उनकी कैपेसिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बी कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट होंगे मस्ट बी अप्रूव बाय स्टेट अथॉरिटी, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी। अब इसमें बी कैटेगरी में भी दो प्रकार के कैटेगरी हैं, एक EIA B1 कैटेगरी जिसमें EIA और पब्लिक हेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू परफॉर्म एंड स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द डिसीजन, एंड सेकेंड इज द B2 जिसमें EIA करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे दोनों में एग्जांपल समझते हैं, ओके, फिर इस पर बैक आएंगे। अब मान लीजिए कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स कौन कौन है, ये देखें कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स, द बिग प्रोजेक्ट्स लाइक थर्मल पावर प्लांट, big industry, big mining areas, roadways, okay, airports, thermal power plant, hydropower plant, and pulp and paper industry and other big industries. So मैं यहाँ पे होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट है EIA नोटिफिकेशन 2006, उसमें इन कैटेगरीज में 32 टाइप्स ऑफ जो लिस्ट है कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स का, उसको एक बार आप जाके पढ़ लेना, याद मत करना है, पढ़ लेना है। सो एक मोटा मोटी इंडस्ट्री में मोटा मोटी मैंने अंडरस्टैंडिंग, बिग अंडरस्टैंडिंग, इफ द प्रोजेक्ट इज अ बिगर साइज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड ए कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट आएंगे। बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे साइज के प्रोजेक्ट्स, जैसे STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, टाउन हाउसिंग, मॉल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया, ओके, रूरल रोडवेज, हॉस्पिटल्स, हाउसेज, लाइक दैट। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आप में से किसी को मन है कि मैं एक छोटा सा सिनेमा हॉल खोलता हूँ या शॉप खोलता हूँ या स्टार्टअप खोलता हूँ जहाँ पे छोटा सा वर्कशॉप होगा। अब इसकी स्केल इतनी छोटी है कि आपको किसी भी प्रकार की EIA कराने की जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस कि कोई हजारस वेस्ट ना इंक्लूड हो या कोई न्यूक्लियर वेस्ट ना इंक्लूड हो, लाइक वाइज, ओके। अब जैसे IIT दिल्ली को एग्जांपल लेते हैं, आपके हॉस्टल के आगे एक साइकिल स्टैंड बनाना है, तो IIT दिल्ली को इतनी छोटे प्रोजेक्ट के लिए EIA कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन IIT दिल्ली को एक बिग लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बनाना है, देन स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट से अप्रूवल लेना हो। बट उसी केस में IIT दिल्ली को एक रिसर्च के लिए हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी कैटेगरी A कैटेगरी में जाके, या न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करना है तो उन्हें कैटेगरी A में जाकर के अप्रूवल लेना होगा, कि नहीं मालूम? तो अब आप बैक होते हैं ना, ओके, स्क्रीनिंग। सो फर्स्ट क्या हुआ, इन इस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने ग्रुप आपको सबमिट किया एप्लीकेशन। सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्क्रीन आउट कि वेदर ये कैटेगरी A का प्रोजेक्ट है या कैटेगरी B का प्रोजेक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग, जो स्केल, टाइप एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है। स्केल में कितने साइज का है, टाइप में किस टाइप का प्रोजेक्ट है, एंड लोकेशंस क्या है। कभी कभी B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट अगर बॉर्डर एरिया में हो, डिफेंस के सेंसिटिव एरिया में हो, या फिर नेशनल पार्क इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल के लिए जाती है, ओके, वो मैं बताऊंगा आगे। बट फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग। सो आपने स्क्रीनिंग कर दिया, अगर आपको लगा कि ये कैटेगरी A का प्रोजेक्ट है, व्हाट यू विल डू, यू विल कीप विथ योरसेल्फ इफ यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको लगा नहीं इट्स अ B1 कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, व्हाट यू विल डू, यू विल रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर लगा ये ना A कैटेगरी का है ना B1 का है, ये B2 का है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिटर्न टू द क्लाइंट, ओके, नो EIA विल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये लोग हैप्पीली अपना वो डेवलप कर देंगे। सो हाँ, देन सेकेंड इज स्कोपिंग।
यहाँ से स्टार्ट होती है रियल EIA। स्क्रीनिंग हो गई। अब स्कोपिंग इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस in which the authority will design a term of reference, जिसे बोलते हैं TOC, term of reference। ये बताएंगे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को कि इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करा के आप आइए, इन सारी चीज़ों का आप स्टडी करा के आइए, देन ओनली आई विल प्रोवाइड माई डिसीजन। क्योंकि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप जाएंगे उनके लिए या ये परफॉर्म करने। सो व्हाट यू विल डू, you will design a term of reference। let me ask you one question, term of reference क्यों डिजाइन करना? एक स्टैंडर्ड भी तो बना सकते हैं। स्टैंडर्ड बना सके, हाँ आप एयर का इन्वेस्टिगेशन कराइए, वाटर का कराइए, वेस्ट का कराइए, लोकेशंस बायोडाइवर्सिटी का कराइए, कर सकते हैं ना। ये TOC क्यों बनाना होता है? नाउ फ्रेंड, हियर इज द लॉजिक। मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, इन्हें स्मार्टफोन मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कराना है, उसी में किन्हीं को पार्किंग बनाना है, किन्हीं को माइनिंग करना है, किन्हीं को एयरपोर्ट करना है। सो यू कैन नाउ सी द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग हैं कंप्यूटर साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री से हैं। लाइकवाइज यू कैन सी द डाइवर्सिटी इन द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जो कि रेलवेज का है, एक प्रोजेक्ट है एयरवेज का है, एक प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री में भी कोई है इंडस्ट्री जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, कोई सीमेंट इंडस्ट्री, कोई है जिनको एकदम ही विस्फोटक कोई इक्विपमेंट बनाना है, कोई आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री। सो एवरी इंडस्ट्री, एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। और इसीलिए दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द TOC एज TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस, जहां पे you can ask the client or you can ask the developer to provide a TOR, term of reference, based on the nature of the project। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप दो एग्जांपल यहाँ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू टेस्ट a nuclear in the submarine area and the same nuclear test in कहाँ करना चाहते हैं, थर्ड डेजर्ट, है ना। अब TOC का डेवलप करते हैं, आप लोग बोलेंगे और मैं इस पे लिखूंगा और फिर हम देखेंगे कैसे डिफरेंस आता है। ओके, सो फ्रेंड, एक है एक प्रोजेक्ट है इन सी, ओके, इन ओके। अब दोनों में हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना है। ओके, अब हमने गवर्नमेंट के पास गए, हमने गवर्नमेंट को बोला आई वांट टू टेस्ट द न्यूक्लियर इन द बोथ एरिया, आप मुझे अप्रूवल दी। तो गवर्नमेंट के पास सबसे पहले आया TOR बनाने के लिए और उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया। अब बात आई है मुझे सी के केस में सबसे पहला TOR क्या होगा, कॉमन चीजें छोड़ के, फॉर एग्जांपल लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, डिटेल एरिया कहाँ है, ये सब तो कोऑर्डिनेट क्या है, मैप्स एरिया का, ये सब सामान्य बात है, ये तो हर एक प्रोजेक्ट में चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें जो TOR में इंक्लूड किया जाना चाहिए टर्म ऑफ रेफरेंस, वो क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल सी में क्या होगा बताएं। एकदम सटीक एक पॉइंट बता दें, जोर से। कौन सी टाइप के फिश है वहाँ पे? एब्सोल्युटली करेक्ट। वो कहेंगे सबसे पहला आप हमें ये बताइए कि क्या ये प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली एरिया में है क्या, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप गल्फ ऑफ मन्नार में, जहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल कोरल रीफ है, इंडिया का वन ऑफ लाइक ऐसा एरिया है बायोडाइवर्सिटी रिच, आप वहीं जाके टेस्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट द बेसिक TOR डेवलप होंगे, वो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। सेम लाइकवाइज
In the Thar desert, what they will ask? The most absolute point. थार में तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का ज्यादा महत्व नहीं, महत्व तो है ही, वहां पे भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं राजस्थान में जो थार में भी है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि लॉजिकली आप देखिए तो उन्होंने ये तो तय है कि ये टेस्ट करना है तो कुछ न एरिया डिसाइड कर रखा होगा जो ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं। रेडिएशन लेवल टेस्ट होगा, हाँ रेडिएशन लेवल एग्जामिन करेंगे। यस, सो in desert the first question was आप में से कितने लोगों ने परमाणु मूवी देखा है? आप देखेंगे उसमें जब डेजर्ट्स में वो टेस्ट करने के लिए जाते हैं, कौन सा जगह वो, जैसलमेर में, तो ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर होता है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री और आई थी कारगिल वार पे, अगर उसमें भी देखेंगे जो इंडिया का कारगिल वार में हो रहा था तो उसमें जो टेस्ट के लिए MI इंडिया का जो है ना ये फाइटर जेट, उसे जब बॉम्बिंग करना था तो पहला ट्रायल किया गया था 2 बॉम्ब्स का, वो डेजर्ट में किया गया। सो डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो पहला क्या आएगा इम्प्लीकेशंस में कि क्या वो ह्यूमन सेटलमेंट से दूर है या नहीं, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट सी में तो नहीं है, यहाँ इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए साउंड विल बी नॉट ए गुड, साउंड कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, बट हेयर साउंड इज अ बिग पॉइंट होगा ना। एयर पोल्यूशन यहाँ पे एक बिग इशू होगा, एयर क्वालिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ सैंड में अगर आप कोई बॉम्बिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इट कैन बी a big blast and can be the wind direction and other things can be a major implication, but यहाँ पे ऐसी कोई नहीं। बट यहाँ पे आप देखेंगे एयर क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे वाटर क्वालिटी एक बिग इशू आ जाएगा, सी वाटर क्वालिटी, बट यहाँ पे वाटर क्वालिटी एक इशू नहीं आएगा, नहीं आएगा ना फ्रेंड। डेजर्ट में तो वैसे भी वाटर कम है तो वाटर क्वालिटी की इशू वहां पे उतनी नहीं आएगी, ऑल्दो कि उनको टेस्ट करना है, दे हैव टू प्रोवाइड डिटेल, बट मेजर TOR में नहीं होगा, बट यहाँ वाटर क्वालिटी आएगी क्योंकि इम्प्लीकेशन कैन बी ऑन दी वाटर क्वालिटी। सो नाउ कमिंग टू द TOR, आप समझ गए, बिकॉज द डिफरेंट नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैज ए फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द डिफरेंट टर्म ऑफ रेफरेंस to the respective agencies so that they can perform accordingly। अब जिनका रेलवे का वो रेलवे की तरह से परफॉर्म करेंगे, जिनका एयरवेज का वो एयर का की तरह से करेंगे, इसे बोलते हैं स्कोपिंग। अब मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट थी, ये ग्रुप, इन्होंने आपको एक टर्म ऑफ रेफरेंस, एक लिस्ट, एक चेक लिस्ट प्रोवाइड किया कि आप इन चीज़ों का स्टडी रिपोर्ट करके हमें दीजिए, और ये कहाँ देंगे, इंडस्ट्री को, डेवलपर जो अप्लीकेंट है, तो आपके पास आएगा वो। नाउ व्हाट यू विल डू, यस, व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द स्टडी, you will start collecting the baseline data, we will start collecting all the information, that is called baseline and impact assessment। okay, so ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है वो एजेंसी परफॉर्म करती है, ये पार्ट जो है अगेन द एजेंसी परफॉर्म करती है, ये पार्ट जो है बेसलाइन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट जो एप्लीकेंट है, जो इंडस्ट्री है, जो डेवलपर है, वो परफॉर्म करते हैं। और इसी पार्ट को अगले क्लास में हम समझेंगे कि एक्चुअली में बेसलाइन डेटा कलेक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी क्या क्या मैथडोलॉजी है, एंड देन once you will have this data set, you also have to perform the EIA public hearing। इसे भी हम अगले क्लास में समझेंगे, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डिसीजन, इसको अगले क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में, स्कोपिंग तक की कहानी में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी।
स्कोपिंग के बाद बेसलाइन डेटा कलेक्शन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास मंडे। बट अभी तक में अगर कुछ भी आपको पूछना हो, वी हैव 10 मिनट्स। इसलिए क्योंकि मान लीजिए डेजर्ट में आप टेस्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल था, डेजर्ट में टेस्ट करते हैं, इट में क्रिएट ए बिग साउंड नॉइस, बट हो सकता है कि सी में उसकी इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि सी में जब आप उसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो काफ़ी दूर होगा, ह्यूमन सेटलमेंट से सी का कंडीशंस अलग होगा। हाँ, उसमें क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ऑल द कंपोनेंट विल बी देयर, बट यू हैव टू स्पेसिफाई द मेजर कंपोनेंट, कि मेजर कौन कौन से कंपोनेंट है। ओके, बट अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर वन थिंग, द TOR जो है इट्स अ काइंड ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, बट स्टिल वेरिएशन इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट्स द मेरा ये समझाने का मेरा मेन मकसद था कि आप प्रोजेक्ट के नेचर को देख करके आप अपने क्लाइंट को या आप अपने डेवलपर को, एप्लीकेंट को बोलते हैं कि आप इन चीज़ों का स्टडी करिए। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं तो देन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। फ्रेंड, एनीथिंग? नो? तो अभी क्या क्या समझा आप बताओ एकदम 5 लाइन में। जैसे आप सीखे EISS होता है जी, स्क्रीनिंग टू स्कोपिंग फिर एडप्शन ने तीनों फोकस किया। करेक्ट। नहीं होती है एजुकेशन वगैरह, फिर स्कोपिंग हो गई कि क्या क्या मतलब क्या करेगा एनवायरनमेंट पे, पेशेंट डाटा। नहीं, वो स्कोपिंग नहीं होती। स्कोपिंग होती है जब अथॉरिटी इन कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए मैंडेट करती है। इम्पैक्ट असेसमेंट इज द थर्ड पॉइंट, बेसलाइन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। अगेन स्कोपिंग समझ गए? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है स्कोपिंग का। स्कोपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोपिंग? एनीवन एल्स? क्या समझे स्कोपिंग का? बोल। एनीथिंग एल्स? कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं स्कोपिंग में? हम ऐसे मोटे शब्दों में बताएं, स्कोपिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट बोलती है कि आप जाके ये स्टडी करके आइए, समझ गए? जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो इंस्ट्रक्टर जो है वो बोले कि आप ये असाइनमेंट करके आइए, देन वी विल डिसाइड कि कितना मार्क्स आपको मिलेगा। लाइकवाइज इन EIA गवर्नमेंट के पास ये अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट का मतलब एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। ओके, सो EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी हैज द पावर टू डिजाइन द TOR। अगर किसी ने पूछा आपसे कि हु इज द डिसाइडिंग बॉडी ऑफ द TOR एट a central level, so you can say expert appraisal committee at a central government level, but state government level में इसे बोलते हैं SEAC, State Expert Appraisal Committee। ओके, डिफरेंशिएशन समझ गए? अगर एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, इसमें इट मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की है। अगर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है तो उसे बोलते हैं वो सेंट्रल। अब इसकी भी थोड़ा सा स्टोरी समझिए। इसमें एक्सपर्ट वर्ड क्यों लिखा है आप बताएंगे कोई? MOEF इज द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है जो हमें EIA अप्रूव करके देती है, लेकिन उसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? खास करके एक्सपर्ट की क्यों जरूरत पड़ गई? गुड, सही बात। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वाटर साइंटिस्ट, बट आई कैन नॉट स्पीक अ लॉट अबाउट द एयर। लाइकवाइज अगर कोई हिमालयन एरिया का प्रोजेक्ट है तो उसको सी में एक्सपर्ट जो होंगे वो उनमें ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। जो हिमालय का एक्सपर्ट होगा वो हिंद महासागर में कोई प्रोजेक्ट अगर हो रहा हो, इंडियन ओशन में हो रहा, तो उसमें नहीं कुछ बता सकता है। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट,
we will have a different expert appraisal committee. So सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारी कमिटी होती है. अगर कोई प्रोजेक्ट डेजर्ट में हो रहा है तो डेजर्ट इकोलॉजिस्ट होंगे उसमें, कोई प्रोजेक्ट ओशन में हो रहा है तो ओशनोग्राफर होंगे, कोई हिमालय में हो रहा है तो हिमालयन ज्योग्राफी हिमालयन इकोलॉजी के लोग होंगे, कोई प्रोजेक्ट्स अगर मान लीजिए न्यूक्लियर पे है तो कोई न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स होंगे, कोई प्रोजेक्ट रेलवे का है तो उसमें कोई रेलवे के प्रोजेक्ट होंगे, कोई डिफेंस से है तो कोई उसमें कोई रिटायर्ड डिफेंस के एक्सपर्ट होंगे. लाइकवाइज अब इसी से टीओआर को समझिए. जब एक्सपर्ट टीओआर बनाएगी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, तो वो टीओआर इटसेल्फ डायनामिक. वो रेलवे वाले अलग बनाएंगे, एयरपोर्ट के होंगे अगर एक्सपर्ट कमिटी तो अलग बनाएंगे, सी में होंगे तो अलग बनाएंगे, हिमालयन प्रोजेक्ट्स होंगे तो हिमालय के रीजन में होंगे तो अलग बनाएंगे. गिरी माय पॉइंट. सो टीओआर बनाने की जो एक कमिटी है वो कमिटी उस अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाती है. जैसे आप मान लीजिए मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो हम कहेंगे उसमें 2 कंप्यूटर साइंस के स्कॉलर होंगे, 1-2 गवर्नमेंट्स होंगे, एक पॉलिसी से होंगे, 1-2 एनजीओ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे. लाइकवाइज अगर कोई केमिकल फैक्ट्री की प्रोजेक्ट है तो हम कहेंगे केमिकल इंजीनियर होंगे, उसमें केमिकल साइंटिस्ट होंगे, 1-2 एक पॉलिसीज होंगे, एक एनजीओ होंगे, एक लोकल एरिया के एक्सपर्ट होंगे. इस तरह से. ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो? कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज, क्योंकि मेरे 6 क्लास के इतना आप समझ लीजिए कि आपके इन एग्जाम में 40% वेटेज होने वाले हैं और प्लस सरप्राइज क्विज भी होने वाले हैं. तो 30% इन एग्जाम में वेटेज एक बेहतरीन वेटेज होता है ना. तो लास्ट जो मैंने 3 सेमेस्टर में यही देखा है कि क्लास में जिन्होंने डिस्कस किया है अच्छे से, क्लास में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आप 30-40% अच्छा कर जाते हैं. और प्रोफेसर विवेक का एवरीथिंग टाइम हमारे कंटेक्स्ट में आपका व्यूज पूछा जाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा. ओपन बुक एग्जाम होता है, इसमें ओपन बुक में आप कितना भी बुक ओपन कर लीजिएगा मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाइएगा. तो जो अभी डिस्कस कीजिएगा बस सिर्फ उतना ही आपको काम आएगा. तो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे या आपको कुछ डाउट. EC and EAC are same. हाँ, बहुत अच्छा है. देखो EAC is a Environment Expert Appraisal Committee at a central level. अगर उसमें स्टेट नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो सेंट्रल लेवल का है. अगर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट. अब इसको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ आपसे तो पूछूंगा कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को इनमें से कौन अप्रूव करते हैं? EAC, SEAC, MOEF ऐसे पूछ दूंगा. सबसे रेलिवेंट आंसर क्या होगा? EAC. अगर पूछूंगा कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट को इनमें से कौन अप्रूव करेंगे? B2 प्रोजेक्ट को कोई नहीं अप्रूव करेंगे क्योंकि वो स्क्रीनिंग से ही चला आएगा वापस, अप्रूव हो गया है ना. देख रहे ना, तो यही है क्लास की महत्वता. चलिए लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह के आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोवाइड योर व्यूज हाउ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ टूल फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टूल है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, और किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी टूल हमें फायदा दे सकती है. और क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक जस्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया है या पर्यावरण से को सुधारने का एक तौर तरीका है? इस तरह के क्वेश्चंस. तो आप क्या आंसर देंगे? फटाफट 1-2 लाइन बता दीजिए बस. आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक लाइसेंस देने की प्रक्रिया है? सभी लोग ये मानते हैं कि ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट को कम करने का, मिनिमाइज करने का भी एक तरीका है. There is another factor that is corruption. हाँ, we will discuss. Also we will discuss in global environmental issues. हाँ, तो environmental impact assessment एक तरीका है सिर्फ न सिर्फ परमिट देने का बल्कि environment को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का, इम्पैक्ट को कम करने का. तो इसमें अपना व्यू है. तो क्या देंगे?
अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया ये। आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें एक मौका देती है जिससे हम की इम्पैक्ट को इवैल्यूएट कर पाएँ और फिर हम उसके लिए जो मैनेजमेंट प्लान है उसे हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड्स टू एनालाइज और यू कैन से इवैल्यूएट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। क्योंकि हमने बोला आपको कि जाइए एयर क्वालिटी असेसमेंट करके आइए, आप जाएंगे, आप कहेंगे कि अब कैसे करें हम इम्पैक्ट असेसमेंट, उस तरीकों को समझेंगे अगले क्लास में। उसके अगले क्लास में इन सब चीज़ों को समझेंगे कि क्यों ये एक फैल इश्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ करप्शंस हैं, कहाँ कहाँ लोग बस समोसे चाय पे काम कर ले रहे हैं, इंडिया में क्या इश्यूज़ हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं, ये तीसरे क्लास में समझेंगे। ओके, सो थर्ड क्लास में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि करप्शंस के कारण ये कैसे फैल हो रहा है और किन किन कंपोनेंट को ठीक करने से ये कैन बी ए वंडरफुल टूल। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। हेलो, मिलते हैं आगे मंडे। दूसरे वाले फोटो की क्या 13 स्लाइड है, 13 स्लाइड है, दूसरे वाली फोटो की लोकेशन क्या है अभी आप 13 स्लाइड निकाल दो। इसकी लोकेशन इसकी तो ये तो ऐसे लिया हुआ है किसी टाउनशिप का, कौन सी टाउनशिप जो लोकल लेवल के टाउनशिप डेवलप होते हैं। जैसे आप कभी शहर में जाओगे तो आप देखोगे ये रेलवे कॉलोनी है, आप कहीं जाओगे यू कैन सी NTPC कॉलोनी है, लाइक वाइज। बड़ा बोरिंग है, ये बोरिंग लग रहा है? मतलब पहाड़ है। हाँ। ऐसी जगह रह चुका हूँ। अच्छा, जहाँ पापा की कोचिंग आई। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? एयरपोर्ट में। अच्छा, so now you can see the Air Force colony is a township. If you want to develop a Air Force सामने colony, ऐसी पहाड़ी है। हाँ, बाहर मतलब जब बाहर क्वार्टर नहीं मिले थे तो बाहर रहा, ऐसी जगह था पूरा और पहाड़ की तरफ थे। तो यहाँ पे बातचीत कुछ बोरिंग होता है। अब जैसे IIT है ना, IIT इज अ काइंड ऑफ टाउनशिप। अगर इसको डेवलप करना हो तो हमें परमिशन लेना पड़ता है, वो इसमें बताया था। कैसा लगा क्लास आपको? समझ गया सब कुछ? लिख लोगे ना एग्जाम में? सर 2nd से 17 के बीच में आप सरप्राइज क्वेश्चन लोगे ना? हाँ, लेंगे। सरप्राइज तो कभी भी हो सकता है, सरप्राइज। एक्चुअली मेरी सर्जरी है, मैं 2 का एडमिट होगा, 14 दिन मेरा बेड रेस्ट रहेगा। ओह, तो इन सब केस यू कैन रिक्वेस्ट ऑफिसर विद मेडिकल रिपोर्ट। हाँ, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन बाद में आएगा ना, बना तो वो बाद में देखेंगे जब पूरा एडमिट कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरनमेंट कब तक बची रहेगी? इन्वायरमेंट जब तक हम आप जैसे लोग हैं तब
प्रयास करना चाहिए हमें, है ना। सो अगर हम लोग अच्छे से अपने लाइफ को whatever our responsibility are, if we can fulfill, then there is a possibility. अगर अच्छे से एनालाइज करें, एक टाइम आएगा जब खाने पीने की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, तो पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर भी है फ्रेंड, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हम आप जैसे लोग हैं, उनके प्रयास से कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी। सो इफ़ यू सी, इफ लॉस इज दिस मच, एफर्ट विल आल्सो ऐड दिस मच, सो ऑलवेज द गैप विल बी दिस मच। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट लॉस हो जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन जब बढ़ती रहेगी, हाँ, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। भले इतना हो, हाँ। लेकिन एक्सपेक्टर भी तो मतलब multiple एक्सपेक्टर factors में ऑलवेज बढ़ता रहेगा। ऑलवेज डायनामिक। एक टाइम आएगा कि एक टाइम आएगा नीचे इससे चलते हैं ना, सीधी साधा। कि एक टाइम आएगा कि वो मतलब अगर आप ऐसे एक और बार कैलकुलेशन करो, हाँ हाँ, ठीक है, 800 करोड़ पॉपुलेशन है, जो पता है पापा यूएस वगैरह गए, आपने जो जगह बताई थी, ऐसे यूएस में यहाँ कनाडा में खाली पड़ा हुआ है, एक जमीन है बहुत खाली पड़ा हुआ। मैं तो कनाडा रह के आया हूँ। हाँ, बट वो यूजलेस है, हाँ, वो किसी काम का नहीं है। कितने भी पेड़ हो, वो किसी काम का नहीं है, अगर वहाँ पे फल नहीं उगते टूट सकते हैं। हाँ, तो ऐसे केसेस में जो अभी भी रिसोर्सेज हैं वो वहीं तक लिमिट है, उससे ऊपर बढ़ नहीं सकती। पॉपुलेशन कम हो नहीं रहा, बड़े कुछ लोग संभाल रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं खाने को, सेव कर रहे हैं। स्टिल एक टाइम आएगा, भले ही कितना भी सेव कर लो, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेशर विल बी इंक्रीज मोर, प्रेशर बहुत रहेगा उसको रेमीडिएट करने के लिए। तो पॉपुलेशन को फुलफिल कैसे करेंगे? एक टाइम पे लड़ेंगे आने के लिए। और अभी भी तो लड़ ही रहे हैं ना। You can see nowadays there is two types of war, one for power and other for food, है कि नहीं? पावर के लिए और फूड के लिए, दोनों चीज़ के लिए लड़ाई तो हो ही रही है। So the positive note is here that if you are going to add something in the society, then you can hope for something good in the future. अगर हम ये सोचें कि बर्बाद हो जाएगा और हम ऐड नहीं करेंगे, then तो इशू अब नाउ आई एम एडिंग टू Canada or US, if it is not eatable, that doesn't mean it is not good for the earth. वो सारी लैंड जो है वो कम से कम यहाँ का एटमोसफेयर डायनामिक्स में मेंटेन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में मेंटेन हेल्प कर रहे हैं। आप देखोगे तो कितना रिच रिसोर्सेज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में मेंटेन कर रहे हैं। एक और फैक्टर है लैंड को साफ कर, वो भी कम हो रहा है। एनिमल कम भी हो रहे हैं और एनिमल शिफ्ट भी हो रहे हैं। अभी हमारे जो आपका तो सर्जरी है, नहीं तो मेरे उस क्लास में आप रहोगे ना ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ वाले में, तो यू कैन सी आई हैव क्लियरली डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग। जो आप बोल रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया। हाउ, हाँ, कैसे ग्लोबल इशूज़ आर द बिग प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन डील विथ इट। तो ये हमने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ब्रह्मा कुमारी गएगा कभी कहाँ? ब्रह्मा कुमारी सेंटर हाँ हाँ गया हूँ। ये हाँ, जब मानते हैं मैं सभी जगह जाता रहता हूँ, मेरा ऐसा। एक्चुअली मैं भी यही सोचता था, हाँ लेकिन जब मैंने योग करना शुरू करा, हाँ। तो लोग अब कैसे माना कि भगवान आया भाई, हाँ हाँ जो नीड करूँ हाँ। तो जैसे मूर्ति है, कोई पीछे जा रहा है? ऐसा है कि आपको बताएगा, ठीक है, वो भी वो एक एक्चुअल में जो मेन है, सब कुछ जो ऊपर आत्मा रहते हैं नीचे आते रहते हैं, ठीक है, नीचे आते रहते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है ना, बाद भगवान आता है, आते वो ऑटोमेटिक आ रहे होते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं लास्ट के 100 ईयर से, लास्ट के 100 ईयर से सत्युग को कन्वर्ट करने के लिए होता है, जो उसमें आते हैं, उसके बाद बताते हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई थी
जो भी चीज़ें देख रहे हो सब खत्म हो गया। ठीक है यार, वो हम लोग बाकी जो हमारे जो लोग योग कर रहे हैं, ठीक है, योग करे जा रहे हैं, वो बस अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, बाकी नीचे हो रहा है, एक टाइम तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस हैं जो मैंने जनरली जब मैंने स्टडी करी तो मैंने सोचा फैक्ट है कि हम कम से कम जो अमीर लोग हैं वो कितना कर लेगा, बहुत अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। एक बार आप जाना फिर आपको पता चलेगा कि हाँ 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 होगा मेरे But is it the